Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Respected Chief Guest, Chairperson of this program, respected teachers and dear students. First of all, I would like to thank the administrative body of Darul Uloom Markaz-e-Islami Education and Research Center for inviting me to be one of the judges of this occasion. I am really thankful to Haji Iqbal Sahab Hafizahullah, who invited me and reposed full faith in me to be one of the judges of this event. Secondly, I would like to congratulate all the participants and the teachers who put their efforts in this wonderful program. MashaAllah, they really performed well, and we were to judge on the basis of their content, their fluency, their body language, and their pronunciations, and their presentations, and their styles, and the chosen topic. MashaAllah, they chose the topic very well. They decided the topic and they worked very well, and they put their efforts, alhamdulillah, very nicely, and they presented here very carefully and nicely. It was very difficult for all of us to judge, especially for me. It was very difficult to judge the speakers because the contents were very informative and very heart-touching. Their style was very good, the presentation was very good, and everything, I think, was up to the mark. Therefore, it was very tough, and I would congratulate all the participants because they participated in this program, and we never know who is going to win this competition. And I would request the administrative committee and body of Markaz-e-Islami Education and Research Center to organize more such competitions like speeches, as you today organized speeches elocution competition. Now I would request you and recommend you to organize writing competition also. There must be some articles written by the students, and the articles should be sent to different scholars. They can judge and they can give the numbers and marks to the student, and later on these articles must be presented in the gathering. So in this way, the skill of writing also will be developed. Why I am saying so? Because there are different kinds of minds. Some students have the mind of speaking, some students have the skill of writing, and some students have the comprehension and understanding skill. So that's why I recommend you to organize such programs like elocution competition, and also essay writing, and also grammar competition, vocabulary competition, and so on. In this way you can generate several competitions. And finally, I am not going to take much time because we have to listen to our elders sitting over the dais. I would pray to Allah subhanahu wa ta'ala, may Allah subhanahu wa ta'ala give us tawfiq
to work more and more for the betterment of the society and for our madrasa and for our department, so that we can produce more speaker, more writer and more preacher for our community. May Allah subhanahu wa ta'ala accept our humble efforts. Ameen. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. MashaAllah, Jazakumullah. The audience, once again, respected brother of our principal, namely Zubair Bhai, have given 1000 rupees for all participants. As well as a student of second year, Maulana Ahmad Saab, has given a humble gift of a bottle of perfume for each participant. Now, with due respect, I would like to invite the editor, Research Journals of Islamic Studies, Zakir Hussain, Institute of Islamic Studies, Jamia Millia Islamia, New Delhi, Dr. Muhammad Saeed Anwar Saab, Qasmi Damat Barakatuhum. Bismillahir Rahmanir Rahim. Wa bihi nasta'in. والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال صدق الله العظيم. Honorable President of today's program, Janab Hazrat Maulana Qari Rashid Ahmad Sahab Ajmeri Damat Barakatuhum, Chief guest of today's program, Hafiz Atif Rashid, former chairman of Minority Commission, prominent guest Qari Haroon Sahab, the principal of this seminary Haji Iqbal Sahab, one of the founders of this Markaz-e Islami Education and Research Center, and my colleagues, Hazrat Maulana Shamsul Huda Sahab Qasmi, all the respected teachers, particularly the teachers of this English department, dear students and all, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. First of all, it's a matter of great pleasure for me to be here with all of you today, and a matter of great honor to be invited and appointed as one of the judges
of today's elocution competition program of the students of Markazi Islami Ankleshwar. What to say about the program? We are stunned enough even to have a few words about this noble presentation by the students of this department. Indeed, it was very difficult, I think, for all the judges, for me especially, to eliminate the 9 participants out of the 12, to choose the first 3. And why not? The basis upon which we had to choose the first 3, like content, presentation, fluency, body language. All of these were marvelous, fantastic, and outstanding. There was nothing to trace. This is something which is not existing or which is lacking in the presentation of the students. Alhamdulillah, I noticed with the passage of time, the quality of the teachers and the quality of the students is growing up. Earlier, in the elocution competition of the students, we could not find the quality that we found today. And it is due to the hardship, due to the hard works of the teachers and the administrators. So I congratulate all the administrators, the teachers, and all the participants that they have come out with a good presentation, with a marvelous piece of presentation. I congratulate them from the bottom of my heart. And why not? In this very short span of 2 years, or a very short span of 1 year, students are able to deliver such an outstanding speech in a marvelous way that is very stunning. This all happens, what we see today, due to the glorious efforts put forward by the teachers, sincerity presented by the administrators. So this is all due to their efforts and sincerity. As for the content of the speeches, I would like to add some more to the existing. Most of the contents were very satisfactory, not only satisfactory, but very outstanding as well. But in some of the speeches, some paragraphs were noticed that delivered a bit of negative sense or negative messages. Like in public speaking, we should avoid putting forward the complaints against the system, against the government body. Rather,
We should prefer to put forward the stuff which is appealing to the government, which is appealing to the system, so that we may avail the opportunity to have some works done by them. This is a time of diplomacy, and the diplomacy works more, much more. So we should avoid those contents which panic the government body and which show the complaint against them. Alhamdulillah, 2 students presented a very good dialogue. I was very much impressed by the dialogue they presented. Modernization of madrasa. What they concluded is a very good message. That both religious as well as secular education are important, equally important to us. We should try to formalize, or we should try to put them on a scale that is equal to them. We should not widen the gap between the secular education and the religious education. Rather, we should try to put them on a scale where they can move together, they can go beyond together. Because we need both. We cannot live without both of the education. We need doctors, engineers, we need officers, we need bankers, we need administratives, we also need ulama, huffaz, fuqaha, muftiyin. So we should try to encourage both of the education, because both play an important role to shape a very good society. For the students who are passing out this year, I congratulate them. I wish them all a very good career. I hope they would come out to the society and play a very vital role, constructive role, to convey a powerful message of moral and ethical values spread out throughout the teachings of the Quran and Hadith. For this, there are several ways to work on. There are several ideas which can enrich your performances and your services to the nation and community. I noticed when 2 of the students together was reciting the Holy Quran and making the translation, I noticed only this can work better. Only this can work much to the society. We don't have a better translation in audio shape today. Or if we have, we should have more. We should have more and more options to adopt. So these students who are passing out this year can perform better in this regard. Also, it's a time of social media, internet, YouTube. We see so many YouTubers there. They are giving their different messages to the community. So why should we be lagging behind in this content, in the contest? Alhamdulillah, you are equipped with a weapon of English language, which is a communicative language, which is a lingua franca of the world, which is spoken, written, understood in every nook and corner of the world. So this is the weapon which you can use for the spread of true message of the Quran and Hadith throughout the world in audio video messages. For example, you can pick out Indian religions and cultures. You can collect contents. There are so many which you can find easily on the websites, different websites.
which you can organize and put forward in an audio and video messages that can work very much in the society. And there are several ways to work on to progress. So do not, please, those who are passing out, do not be discouraged or do not worry about their future and career. Just dig out your own well and then you can see the fruit, inshallah ta'ala. A lot have to be spoken. And today my heart goes off when I see this marvelous piece of organization. Organizing such a marvelous piece of program. This reminds of the days when I used to be here as a teacher. And I found Hazrat Maulana Musa Sahab Makrod Rahmatullah Alayhi sitting over there. Hazrat Maulana Ismail Sahab Shaheed Rahmatullah Alayhi sitting here and there, picking with a smiley face everywhere. So today my heart actually goes out for them all. May Allah bless them. May Allah enrich their qabr. May Allah fill their qabr with noor. May Allah bestow them with a lot of bounties upon them. This is the last, not the least. I congratulate all the participants. And again, I would repeat the same request to the administrators that such elocution competition, not only such elocution competition, but also for the writing skills, for the grammatical skills, for the skills of reading and several other faculties of learning any language should also be organized so that they may have the chances to boost different corners of learning language and literature. With these words, I would like to thank the administrator to give me such an idea to express my words before you and to have such a marvelous piece of program being organized. Wa assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. MashaAllah, Jazakumullah. The audience once again, respected brother-in-law of Haji Iqbal Sahab, namely Haji Javed Sahab, has given 1,000 rupees for all participants. Now, I would like to humbly request HOD English Department, Jamia Arabiya, Hathora Banda, UP, Hazrat Maulana Saeed Sahab Qasmi Dawat Barakatuhum. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil kareem amma ba'd. First of all, I would like to welcome you with the greeting of Islam, with the greeting of people of paradise. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. May peace, mercy and blessing of Allah Almighty be upon all of you. Dears, today I feel it my extremely honor and happy to be among these dynamic and very celebrated personality. Today, here my teacher, my trainer, mentor, and those who have polished me, they are present there. So today, I am not finding myself in a condition that I can talk and give any suggestion. Because I am not in a situation that I can give suggestion, because while giving my suggestion, I am trembling with fear. I am trembling with emotion. I can say that words are not coming out from my mouth because I am here choked with a unique kind of emotion. I cannot express this. Do you know, I used to be here for a long time as a student and a teacher, and I have enjoyed a marvelous company of Maulana Musa Sahab Rahmatullah Alayhi Rahmatan Wasiya, and his beloved son who was like an elder brother for me, Hazrat Maulana Ismail Sahab Rahmatullah Alayhi. Today I am not finding them, so I am feeling a unique kind of sadness, because today wherever I am seeing this marvelous building and such a nice environment, so I feel
we can say a rare kind of sadness in the environment of this Jamia, because they are not there. Those who have established this department and those who have enabled us to stand before you, may Allah reward them well. And whatever the students have presented today, this is the result of their hard working, their sincerity, and their selfless services they have presented for the sake of Deen, for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. Today, I was baffled with the performance of the student. I was in a condition that I could not give my comment, because my teachers and my elders have given a very comprehensive and elaborate comment regarding the performance of the student. I cannot say even a single word, because they have given a very, very emphatic comment about your performance. But what I feel, that you all have done a marvelous job, because today you have performed the miracle. Today, when I saw you while talking and while speaking and while presenting your oratory skill, I was thinking that once I was also the part of this well-organized seminary, and I was missing, and I was hoping that should I also have been among these students, those who are performing well, alhamdulillah. Brothers, here lots of dignitaries are, and we are gathered here to listen to them. I could not say more than that, and I am very thankful to you, all of you, and I am also hoping that you will pray for me to be successful in my life, and I am also praying for you to be successful in your life. Thank you. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. आ जाओ खत्म हो गए दिन इंतजार के, आ जाओ खत्म हो गए दिन इंतजार के, दौरे खिजा गया और दिन आए बहार के. Dear audience, as it is but natural that a person is always desirous to know the happy ending or the consequence of any act he does. The same in the case with us, that we had been continuously listening to speeches on different topics delivered by the participants. Every one of us might be intensely curious to know as to who are the fortunate top rank holders amongst them. Hence, to fulfill your same desire, before we announce it, we would like to express our heartiest congratulations to all those participants who secured the 3 positions respectively. Please be attentive. The 3rd position goes to Maulana Akbar Ali Sahab, and the 2nd position goes to Maulana Huzefa Zia Sahab. I think you must be super excited as to know the name of the 1st position holder. So, who would be? Who would be? So let me announce that it is none other than Maulana Yasin Sahab. MashaAllah, your hard work really paid you off. We all congratulate you for this. Alhamdulillah, all the 3 top position holders have been awarded different amount as prizes. Of them, 1st position holder is rewarded 2,000 rupees. The 2nd position holder 1,500 rupees, while the 3rd position holder is awarded 1,000 rupees. So kindly come here and receive your prizes from the blessed hands of the Honorable President.
Jazakumullah. The audience, for your kind information, Alhamdulillah, all the participants have been giving a valuable amount as a gift for their encouragement on behalf of the soul and heart of Darul Ulum Markaz Islami, the principal Haji Muhammad Iqbal Sahab Dawud Barakatuhu. Now, we request all the participants to come in order as announced and receive their certificates from Haji Muhammad Iqbal Sahab Dawud Barakatuhu. Maulana Mujahid Sahab, Maulana Abrar Sahab, Maulana Asadullah Sahab, Maulana Rashid Sahab, Maulana Shoaib Sahab, Maulana Siddiq Sahab, Maulana Ashhad Sahab, Maulana Shihab Sahab, Maulana Abdul Rahman Sahab, Maulana Aftab Sahab, Maulana Wasiullah Sahab, Maulana Asif Sahab, Maulana Masiullah Sahab, Maulana Adil Sahab, Maulana Ahmadullah Sahab, Maulana Nisar Sahab, and Maulana Munawwar Sahab, and me also. Dear listeners, Alhamdulillah, our today's program came to an end successfully. Now, with due respect, we would like to request our chief guest, Hafiz Atif Rashid Sahab, to come up with regard to the performance of the participants. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد आज के इस जलसे की सदारत कर रहे हज़रत मौलाना क़ारी रशीद अहमद साहब अजमेरी, यहाँ के मरकज़ के प्रिंसिपल हाजी इकबाल साहब, इस जलसागाह में मौजूद तमाम मेहमान किराम, मुअज़्ज़िज़ असातिज़ा किराम, तमाम तुलबा हज़रात, तमाम सामाईन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक दरख्वास्त मैंने करी थी कि जिस वक्त मैं बोलूं तो ये मुमकिन हो तो लाइव ना चलाया जाए, अगर मुमकिन हो तो मैं थोड़ी सी मन की बात कर लूँगा। बाकी रिकॉर्डिंग कोई करना चाहे तो कर भी सकता है, कोई ऐसी बात नहीं है। सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूँ जनाब मुफ्ती आरिफ इल्मी साहब आपका कि आपने मुझे इस इतने उम्दा प्रोग्राम में मदऊ किया। आज से शायद कमोबेश 1.5 साल पहले, उस वक्त मैं माइनॉरिटीज़ कमीशन का वाइस चेयरमैन हुआ करता था, मेरे पास मुफ्ती साहब आए थे
तो बहुत इसरार उन्होंने मुझसे इस प्रोग्राम में आने के लिए किया। मुझे सच पूछिए तो यहाँ आने से पहले तक प्रोग्राम की क्या नौइयत है, क्या प्रोग्राम है, उसको मैंने गौर भी नहीं करा था। जब मैंने यहाँ जोहर की नमाज पढ़ी, यहाँ बैनर देखा, चाय पीते पीते फिर मैंने मुफ्ती साहब से दोबारा समझने की कोशिश करी। दरअसल तो ये मरकजुल मारिफ के नाम से ऐसा इदारा दिल्ली में भी एक चलता था। उमर गौतम साहब उसको चलाते थे। मेरा उससे कुछ ताल्लुक इसलिए रहा है कि मेरे बड़े भाई हाफिज आमिर रशीद साहब उसमें पढ़ाते थे, तो मेरा भी कई बार वहाँ, बहुत पुरानी बात है, बहुत छोटा था, जाना आना मेरा हुआ। लेकिन मैं ऐसा इदारा दोबारा देखने को बहुत तरसता था। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा वो ख्वाब शर्मिंदा ताबीर करने के लिए मुफ्ती साहब आपको मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। दूसरे, जब मैं यहाँ पर आया, मैंने यहाँ पर इकबाल साहब ने कहा कि आप सुबह आ जाइएगा, शाम को चले जाइएगा। मैंने कहा नहीं साहब, मैं थोड़ा एक दिन पहले आऊँगा, शाम को जाऊँगा, थोड़ा सा देखूँगा, समझूँगा। सियासी आदमी हूँ तो चेहरे भी पढ़ने की कोशिश करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने बारे में भी एक बात बता देता हूँ आपको कि मैं भी मदरसों से ताल्लुक़ रखता हूँ। मेरे दादा का नाम था कारी मोहम्मद अशरफ। मेरे दादा अंग्रेजों के ज़माने में ब्रिटिश आर्मी में इमाम थे। 1940 में उनका ट्रांसफ़र दिल्ली कैंट हो गया। फिर हिंदुस्तान पाकिस्तान का एक अनफॉर्चुनेट बंटवारा हुआ, उनको यही पोस्ट पाकिस्तान में ऑफर की गई, वो नहीं गए। उन्होंने 1946 में ब्रिटिश सरकार की नौकरी छोड़कर दिल्ली के आज़ाद मार्केट में मस्जिद हाजी फखरुद्दीन में इमामत और मुदर्रिसी करी। 1946 से लेके 2007 तक उसी मस्जिद में इमाम और मुदर्रिस मेरे दादा रहे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं उस मस्जिद के आंगन की ही पैदाइश हूं। हम 5 भाई हैं और देवबंद मेरी ननियाल है। जो पुराने देवबंद के लोग होंगे, मौलाना उमर कासमी मेरे नाना थे। देवबंद से थोड़ा आगे चलेंगे, नागल जो से अंदर जब जाएंगे तो एक गांव आता है नलेड़ा पांडोली। नल्हेड़े की मेरी ससुराल है। नल्हेड़े के जो मदरसा है, वहाँ जो नल्हेड़े में एक मदरसा चलता है, कुछ लोग जरूर वाकिफ होंगे। उस मदरसे के मोहतमिम साहब मेरे ससुर हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और हम 5 भाई हैं अल्हम्दुलिल्लाह, 5 हाफिज कुरान हैं। मेरे ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का खुसूसी करम यह है कि मेरी बीवी भी हाफिज कुरान है। मेरे 3 बेटे हैं। सबसे बड़ा बेटा 11 साल का है, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी हाफिज कुरान हो चुका है। छोटा बेटा 7 साल का है, अल्हम्दुलिल्लाह 6 सिपारों का, वो भी हाफिज कुरान हो चुका है। उससे जो छोटा है अभी 1.5 साल का है, आप लोग दुआ कीजिए अल्लाह ताला उसको भी दीन की खिदमत के लिए कबूल फरमाए। मैं सियासत करता हूं भारतीय जनता पार्टी। हंसी आ गई। एक साहब मुझसे बोले कि आप भारतीय जनता पार्टी की सियासत करते हैं? मैंने हाँ जी। तो जहन्नम के सबसे निचले दर्जे में हो गए। मैं बोला साहब 2 बातों के जवाब दे दीजिए। क्या अल्लाह ने तुमको यहां पर मुकर्रर कर दिया इस बात के लिए कि कौन जहन्नम में ऊपर होगा कि नीचे होगा? एक बात।
दूसरी बात एक और बता दीजिए, तुम वहां क्या कर रहे होगे? मुझे देखने के लिए गए जाओगे क्या जहन्नम में? तीसरी बात एक और बता दीजिए, जब कब्र में फरिश्ते आएंगे तो मैंने तो ये सुना है कि वो सवाल ये करेंगे, तेरा रब कौन था, तेरा दीन क्या था, तेरा नबी कौन था? या ये पूछेंगे, भाई कौन सी पार्टी में थे तुम, तेरा सीएम कौन था, तेरा पीएम कौन था, किसको वोट देते थे? ये भी मैंने उनसे सवाल करा, उनको समझ में नहीं आया। खैर, मैंने कहा कि ये जो जन्नत और जहन्नम का फैसला है, ये फैसला अल्लाह ने अपने ऊपर रखा है, ये तो नबियों को भी नहीं दिया है। इसलिए दुनिया में कौन क्या कर रहा है उस पर मत जाइए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आपका भाई जब भारतीय जनता पार्टी की सियासत करता है तो भारतीय जनता पार्टी में काम करते हुए मैं ये कोशिश करता हूं कि मेरे नबी ने, मेरे कुरान ने जो तालीम दी है, उस तालीम को मैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट उन तक पहुंचाने की कोशिश करूं। चुनाचे बहुत बार ऐसा हुआ, बहुत बड़े बड़े लीडरान ने मुझसे ये कह दिया कि अब तुम हमको कोई जमात इस्लामी की किताब मत दे देना लाकर। मैं जमात इस्लामी के दफ्तर चला जाता था, वहां से कोई हिंदी की कोई किताब लेता था, पर्दा क्या है, इस्लाम क्या है, रोजा क्या है, लाता था और साहब लोग पढ़ना था, इसे कोशिश करो, पढ़ो। लेकिन वो कब पढ़ते थे? वो तब पढ़ते थे, ये बैठे हैं कारी हारून साहब, कारी हैं, देखिए पीछे बैठे हैं, ये दिल्ली बीजेपी माइनॉरिटी मोर्चा के अध्यक्ष भी हैं। ये दिल्ली बीजेपी माइनॉरिटी मोर्चा के अध्यक्ष भी हैं। तो ये तब पैदा हुआ कि जब पार्टी में कोई अनअकाउंटेबल अमाउंट कहीं डिस्ट्रीब्यूट करना होता था, करोड़ों रुपए का मामला होता था, तो मेरी पार्टी के बड़े लीडर ये कहा करते थे कि ये काम, कहते हैं अभी, ये काम आतिफ रशीद को दे दो, जो होगा 100% होगा, ईमानदारी से होगा, खरा होगा। और भी ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिससे हमने ये तासुर वहां पेश करने की कोशिश करी कि ये हमारा कैरेक्टर है, ये हमारा किरदार है। बात बहुत बड़े बड़े आलिम यहां बैठे हैं, मेरी अगर कोई बात, मैं दीन के बारे में सोचता हूं, लेकिन सिर्फ उतना ही सोचता हूं जिससे जाने अनजाने गलती से दीन से बाहर ना हो जाऊं। जैसे मेरे दिल में कभी कभी सवाल आता है, कभी कभी आप भी सोचिए कि अल्लाह ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबुव्वत 40 साल की उम्र में ही क्यों दी? 20 साल की उम्र में भी दे सकते थे। मैं सोचता हूं, आप भी सोचिएगा। लोग गौर नहीं करते उम्र। देखिए साहब, मेरी घंटी बजा दीजिएगा अगर मैं थोड़ा, क्योंकि मेरा टाइम नहीं लिखा है आपने। अच्छा, घंटी रख लीजिए कि साहब 40 साल की उम्र में क्यों दी वही नबुव्वत? 20 साल की उम्र में भी दे सकते थे, 15 साल की उम्र में भी दे सकते थे। फिर जब मैं इसे दुनियावी एतबार से गौर करता हूं, जब मैं खुद 40 का हो गया तो मैंने ये महसूस करा कि 40 की उम्र में आके एक लड़कपन खत्म होता है, एक बुर्दबारी आती है, फैसले लेने की सलाहियत बढ़ती है। अल्लाह ने रसूलुल्लाह को रहमतुल लिल आलमीन बनाना था, रहमतुल लिल मुस्लिमीन नहीं बनाना था। इसलिए 40 साल की उम्र में नबूवत दी, और 40 साल की उम्र में नबूवत देने के बाद सुलह हुदैबिया जैसे एग्जाम्पल हमारे सामने खड़े करे। ऐसे ही मैं कहता हूं कई लोगों से
कि अल्लाह जो है वो रब्बुल आलमीन है। हिंदुओं का भी रब है साहब, सिर्फ रब्बुल मुस्लिमीन नहीं है, वो रब्बुल आलमीन है, सबका रब है। और जब वो सबका रब है तो क्या हम सब की ये जिम्मेदारी नहीं बनती कि हम सब मिलकर उस सब के रब की इबादत करने की जिम्मेदारी सब तक पहुंचा दें? अब मैं आपसे एक बात और कहता हूं। तो मैं जो ये कह रहा था कि मैं सोचता हूं, वो ये सोचता हूं हमारे जो दूसरे भाई हैं वो हमारे से कुछ बातों से डरते हैं। माफ कर दीजिएगा अगर मेरी कोई बात गलत लगे। हुक्म है टखनों से ऊंचा पजामा पहनिए, टखने खोल कर रखिए, लेकिन हमारे बहुत सारे लोगों की पिंडलियां भी खुली हुई होती हैं, इतना ऊंचा कर देते हैं और दूसरे लोग इससे डरते हैं। मैं अक्सर सब लोगों से कहता हूं, मैं भी दाढ़ी रखता था साहब, मेरी दाढ़ी गायब हो गई, मैं दिखलाऊं, मेरी दाढ़ी बहुत बढ़िया थी माशाल्लाह, मुझे कैंसर हो गया, कैंसर होने से ये सब गायब हो गई, उड़ गई। अब दुआ करता हूं आप लोग सब दुआ करिएगा अल्लाह ताला मुझे भी दाढ़ी दे दे दोबारा। तो हमारी दाढ़ियां जो होती हैं, मैं दाढ़ी पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा, छोटी रखिए बड़ी रखिए, बस सिर्फ एक ही बात कहूंगा कि हजरत उमर जैसी दाढ़ी रखनी शुरू कर दीजिए आप सब। मुझे नहीं मालूम कैसी है, मैंने कहीं कहीं पढ़ा है कैसी उनकी दाढ़ी थी क्या थी, लेकिन यहां पर कोई इसे अपने ऊपर मत ले। मेरे वालिद भी उसी कैटेगरी में थे, मैंने फिर बाद में उनको चेंज करवाया। हमारी मूंछ साफ होती है, दाढ़ी खसखसी होती है, बिल्कुल सफेद है, बिल्कुल सफेद, मूंछ बिल्कुल साफ है, दाढ़ी थोड़ी इतनी है, खत है, दाढ़ी नहीं है, खत है। और उसको जब हम लाल रंग का पूरा पेंट कर देते हैं ना, उसके बाद बिल्कुल लाल कर देते हैं, बिल्कुल लाल चमकती है, लाल एकदम, उससे दूसरे लोग डरते हैं। मैंने उनमें रिसर्च करी है जाके, उससे दूसरे लोग डरते हैं। मैं मस्जिद हाजी फखरुद्दीन आजाद मार्केट में था, वहीं मेरे दादा इमाम थे। ये मस्जिद की दीवार थी और इतनी दूरी पे, ये ज्यादा दूरी है बल्कि इतनी दूरी पे एक घर था, कुमार मेडिकल स्टोर वालों, मस्जिद के ऊपर माइक लगा हुआ था। कुमार साहब के फादर को हार्ट की प्रॉब्लम थी, कुमार साहब के फादर को हार्ट की प्रॉब्लम थी। मेरा मुंह ड्राई हो जाता है बीच बीच में बात करते करते। तो उन्होंने कहा मेरे वालिद से कि मुशर्रफ भाई एक निवेदन है आपसे, बताइए। कि साहब ये सुबह सुबह जो आपका माइक में जो अजान की आवाज होती है ना, सुबह अर्ली मॉर्निंग होती है, तो मेरे फादर जो हैं वो एकदम डर के घबरा के उठ जाते हैं। वो बिल्कुल आमने सामने, थोड़ा इसका आवाज हल्की कर दीजिए। मेरे फादर ने कहा बिल्कुल ठीक कह रहे हो। उन्होंने मौजिन साहब को बुलाया, मौजिन साहब को बुला के कहा कि मौजिन साहब इसकी आवाज थोड़ी हल्की कर दीजिए, ये समस्या है। ठीक कर दी। मुतवल्ली साहब आए 2-3 दिन बाद, अरे मौजिन साहब ये आवाज हल्की क्यों हुई है? बोले वो कुमार मेडिकल स्टोर वाले जो है ना जी, कुमार मेडिकल स्टोर वाले जो हैं उनके बाप को ये प्रॉब्लम है। बोले फिर तो और तेज बढ़ा दो, जल्दी मर जाएगा मरदूद, और तेज कर दो। ये हमारा मजहब नहीं, इसका हुक्म नहीं है। अल्लाह के रसूल ने जो अपना आखिरी खुतबा दिया था उसमें यह कहा था कि जो यहां मौजूद है वो गैर मौजूद तक इस इल्म को पहुंचा देना। आप तक आ गया, मुझ तक आ गया, अब इससे आगे तक कैसे जाएगा, इसकी जिम्मेदारी हम सब पर है। मेरा कहने का मकसद ये है, जो अभी इशारतन प्रोफेसर तारिक ने कही बात, तारिक सईद तारिक साहब ने कही इशारतन, कि जो मैंने भी कही कि सुलह हुदैबिया एक एग्जाम्पल है
हम सब पढ़ते हैं उसे, हम सब पढ़ते हैं। एक हदीस के बारे में मैं अक्सर लोगों से जिक्र करता हूं कि वो एक हदीस हमने सुनी है कि भाई एक औरत कचरा फेंक रही है, परेशान कर रही है रसूलुल्लाह के ऊपर। जब कचरा गिरना बंद हो गया, पता चला भाई क्या बात है कि बीमार है, तो खैरियत मालूम करने चले गए। और वो जरा उसको इमेजिन कीजिए, वो कचरा ही पड़ा होगा, वो कचरा कैसा होता होगा, आज से 1500 साल पहले वो घर का पाखाना सब होता होगा, कितना गंदा होता होगा। तो जरा इमेजिन कीजिए, आपके हाथ में ताकत है, अच्छे मजबूत हैं, एक आदमी आपको गाली दे के चला गया, बर्दाश्त करेंगे क्या? उसको इमेजिन करिए अपने ऊपर, कितना बर्दाश्त करेंगे, कितना बर्दाश्त करेंगे। तो जरूरत इस बात की है कि हम अपने अखलाक से, अपने आमाल से अपने इल्म को आगे तक पहुंचा दें। उसमें सबसे बड़ी कड़ी अगर कोई है अखलाक और आमाल को पहुंचाने के लिए आगे, वो है जरूरत अंग्रेजी की और वो है जरूरत अरबी की। ये आज की जरूरतें हैं और आप सिर्फ हिंदुस्तान तक महदूद नहीं है। आप जो लोग यहां अंग्रेजी की तालीम हासिल कर रहे हैं, अंग्रेजी जबान के जरिए आपको पूरे दुनिया में रसूलुल्लाह के पैगाम को पहुंचाने वाला बनना है। मुझे नहीं मालूम कि आप लोग किस नियत के साथ इस तालीम को सीख रहे हैं। हो सकता है आप इसलिए सीख रहे हो कि हमारी 50,000 रुपए की तनख्वाह लग जाएगी, 60,000 की लग जाएगी। मैं अभी प्रिंसिपल साहब से कह रहा था, इकबाल साहब से कह दूं यहां मंच पे, कोई असातिज़ा किराम मेरी बात को सुन के बागी मत हो जाइएगा। मैंने इनसे पूछा असातिज़ा किराम की तनख्वाह कितनी, इन्होंने मुझे बताई कोई तनख्वाह। मैंने कहा ये हम लोगों की गलती है। प्रिंसिपल साहब, मैंने क्या मैं अगर कोई प्राइवेट स्कूल खोलूंगा, उस प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने के लिए क्या कोई उस्ताद इतने पैसों पर आ सकता है जितने पैसों पर यहां पढ़ा रहा है? ये निजाम की प्रिंसिपल साहब की गलती नहीं है, ये तो मेरी गलती है, ये आतिफ रशीद की गलती है, हर मुसलमान की गलती है। जरूरत इस बात की है कि जहां पर इस तरीके की तालीम दी जा रही है, जो तालीम सीखने के बाद अल्लाह और उसके रसूल के पैगाम को पूरी दुनिया में पहुंचाने का काम करेंगे, वहां के असातिज़ा की तनख्वाह 50,000, 60,000, 70,000 होनी चाहिए। इतनी होनी चाहिए कि वो वहां से छोड़कर नहीं जाए। मैंने गुजारिश करी, बताया मुझे अभी इकबाल भाई ने कि इंशाअल्लाह इस साल अप्रैल से कुछ बढ़ाएंगे। मैंने कहा कुछ नहीं, बहुत बढ़ाइए इसमें। और एक और रिक्वेस्ट करी मैंने इनसे कि आप जिस तरीके का मरकज यहां चला रहे हैं, मैंने कई लोगों से जिक्र करता हूं, हमारे नॉर्थ इंडिया में ऐसा शौक नहीं है लोगों को, इस तरीके का शौक नहीं है। नॉर्थ इंडिया के जो पैसे वाले मुसलमान, और माफी के साथ कह रहा हूं जो हमारे रहनुमा उलमाए किराम, बहुत माफी के साथ, बहुत अदब के साथ कह रहा हूं कि उनके पास हालात भी हैं, उनके फॉलोअर्स भी हैं, हालात भी हैं और फॉलोअर्स भी हैं उनके पास। वो चाहें तो बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों का क़याम कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने मदरसे के फारगीन को दुनियावी आलात से, दुनियावी हथियारों से लैस करने के लिए कोई तालीमी इदारा नहीं शुरू किया। मैं आज इस मंच से इकबाल साहब को, यहाँ की मुंतजिमा कमेटी को, आपको दावत देता हूं कि आप दिल्ली में और उत्तर प्रदेश में इस तरीके के मरकज का क़याम करिए। आपके साथ 24 घंटे 7 दिन में आतिफ रशीद खड़ा रहूंगा इंशाअल्लाह, जिस लायक भी हो। ये कौम की खिदमत है, मिल्लत की खिदमत है। अंग्रेजी सीखना बहुत जरूरी है, लेकिन एक बात और मैं कहना चाहूंगा
कारी रशीद साहब इस पर बाद में चाहूंगा भी कि वो इस पर अपना तबसरा जरूर रखें कि जब हम कोई जबान सीखते हैं तो वो जबान अपने तासुरात और अपना कल्चर हम पर छोड़ने की कोशिश करती। हालांकि मुझे बहुत खुशी हुई कि ये जो नात शरीफ पढ़ी थी मौलाना शुएब साहब ने, है ना, कहाँ है मौलाना शुएब? अल्हम्दुलिल्लाह मौलाना शुएब साहब ने नात शरीफ भी हमारे ही अंदाज में पढ़ी थी, अंग्रेजी वाली। मजा आ गया था सुनकर माशाल्लाह। लेकिन जब हम कोई भी जबान सीखते हैं, मैं इसकी एक मिसाल देता हूं आपको। एक भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े लीडर हैं, सुब्रमण्यम स्वामी थे, अब नहीं है, पार्टी से निष्कासित हो गए। उनकी बेटी है सुहानी हैदर, सुहानी नाम है उसका, हैदर उनके हस्बैंड का नाम है। मैं आपको दो बातें और बताना चाहूंगा। नहीं है पानी। मेरे बेटे का दाखला दिल्ली के नंबर 1 स्कूल में हो गया। मैं माइनॉरिटीज कमीशन में था, तो दिल्ली के नंबर 1 संस्कृति स्कूल, मौलाना बता देंगे, संस्कृति स्कूल में 50 लाख रुपए की डोनेशन देकर भी नहीं होता एडमिशन। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वालिद उस वक्त हयात थे। मेरे वालिद और मेरे बड़े भाई ने मुझसे कहा कि भाई एक बात बता, हमने तुझे भी पढ़ाया था, हमें क्या पता था तू भाजपा में चला जाएगा, हमें तो नहीं पता था, ये मत पढ़ा, ये इसको मत पढ़ा, उसको जो है थोड़ा हिफ्ज करा। दुनिया का वादा तो अल्लाह का है, दुनिया का वादा तो अल्लाह का है, तो उसको हिफ्ज करा, रोजी रोटी तो मिल जाएगी उसको, जो भी उसके नसीब में होगी हर हाल में उसको ढूंढते हुए मिल जाएगी। चुनाचे मैंने फैसला करा कि मैं उसको स्कूल में दाखिल नहीं कराऊंगा। अभी मुफ्ती आरिफ साहब और इकबाल साहब मेरे घर आए थे, मैं 11 साल का हो गया, मैंने अभी भी उसका दाखिला नहीं कराया है स्कूल में। मैंने कहा पहले इसको कुरान को याद करो, तजवीद के साथ पढ़ना शुरू करो। मुफ्ती साहब को और इकबाल साहब को सुनवाया था, 100 में से 100 नंबर देकर आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अगले साल उसका दाखिला कराएंगे, जहां भी कराएंगे, लेकिन हमारी प्रायोरिटी यही है कि वो कुरान को सीखे, सिखाए, नॉट प्रोफेशनली बल्कि पेशन के साथ, जुनून के साथ। उसका मकसद कुरान के जरिए आखिरत कमाना हो, दुनिया कमाना ना हो, तो हमें यकीन है कि वो दुनिया खुद ब खुद उसे मिलेगी। ऐसे ही मेरी बेटी का एडमिशन माटा डाई स्कूल में हो गया। माटा डाई स्कूल एक लड़कियों का स्कूल है, क्रिश्चियंस का बहुत बड़ा स्कूल है। मेरे भाई मेरे पास आए, बोले सुब्रमण्यम स्वामी को जानते हो? मैं बोला हाँ जी जानता हूं। उसकी बेटी ने हिंदू से शादी, मुसलमान से शादी करी, क्यों करी? मैं बोला जी मुझे तो नहीं मालूम क्यों करी। उन्होंने कहा वो साउथ इंडिया के ब्राह्मण है, और साउथ इंडिया के ब्राह्मण हम सब जानते हैं इस बात को कि वो अपनी बहन बेटियों का रिश्ता नॉर्थ इंडिया के ब्राह्मणों से भी नहीं करते। वो अपने आप को बहुत सुपीरियर समझते हैं, ये सब जानते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, और हो सकता है हो भी सुपीरियर। उन्होंने कहा कि वो तो नॉर्थ इंडिया के ब्राह्मणों से भी नहीं करते, लेकिन उन्होंने, उनकी बेटी ने एक मुसलमान से शादी क्यों करी? मैंने कहा वो आजकल के हालात हैं, प्यार मोहब्बत वाला मामला, वो हो गया होगा। बोले नहीं, बात दरअसल ये है कि उसने जो तालीम हासिल करी कॉन्वेंट स्कूलों में जो वो पढ़ी, उस कॉन्वेंट स्कूल की तालीम ने, उस अंग्रेजी तालीम ने उसका नजरिया बदल दिया, और वो नजरिया इस हद तक बदला कि वो अपने मजहब के हिसाब से बददीन हो गई। तो आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि, और अब एक बात और समझ लीजिएगा, पता नहीं यहां के लोगों को ये मेरी बात अच्छी लगेगी कि नहीं लगेगी। बहुत बड़ी बड़ी जगह से ये रिसर्च आ चुकी हैं। मैं आपको वो रिसर्च के पेपर्स अवेलेबल करा दूंगा, मेरे पास है।
अमेरिका की रिसर्च है कि बच्चों की जो बेसिक तालीम है वो उनकी मादरी जबान में कराएंगे तो बच्चे बहुत ब्रॉड माइंडेड होंगे। चुनाचे आपकी जो अपनी मादरी जबान है उस पर कमांड ना रहे, दूसरों की जबान पर कमांड हो जाए तो आपके ऊपर आपकी जहनियत का परिवर्तन, तब्दीली होना भी लाजमी हो जाएगा। इसलिए दूसरी जबानें सीखते हुए, जबान को सीखते हुए उसके मकसद को सामने रखते हुए, मकसद जो भी आप रखेंगे, मैं एक बहुत बड़े मदरसे हैं हिंदुस्तान में, मंच से नाम नहीं लूंगा, खतरा हो जाएगा मुझे। एक मदरसा मैंने मौलाना को बता दिया था कल, एक मदरसा ऐसा है वहां के जो फारगीन हैं दारुल उलूम देवबंद, मैंने ये देखा कि वहां के जो मैंने अपने मैंने कहा सियासी आदमी हूं, तजुर्बा करता हूं। जैसे मैं वहां बैठे बैठे सोच रहा था, मैं आप सबके चेहरे देख रहा था और मैंने हारून भाई से कहा, आधी बात हारून भाई से कही, बाकी बात आपसे कह देता हूं। मैंने कहा कि माशाल्लाह सबके चेहरे बहुत नूरानी हैं। और अब बाकी बात जो मैंने दिल में सोची थी वो बता दूं कि इंशाअल्लाह हम सब लोग जन्नत में भी मिलेंगे। ये मैंने अपने दिल में कही थी ये बात मैंने इनसे कही कि सबके चेहरे नूरानी हैं। मैंने कहा ना सियासी आदमी हूं, चेहरे भी देखने की कोशिश करता हूं। तो मैंने इनको बताया कि दारुल उलूम देवबंद के जो आदमी फारिग निकलते हैं वो 99% आपको ऐसे मिलेंगे, कामयाब हों कि ना हो, लेकिन वो कभी अपनी दाढ़ी नहीं कटवाते। कभी थोड़ी हालात के हिसाब से किसी की छोटी बड़ी हो जाती है, लेकिन वो ब्लेड नहीं चलवाते हैं। लेकिन एक मदरसा ऐसा है कि वहां के फारगीन ने मैंने ये देखा है, फारिग होते होते ही दाढ़ी साफ करवा देते हैं। मैंने गौर करा तो पता चला वहां पर जो है जितने भी कोर्सेज हैं, आदमी कोर्सेज कर रहा है काहे के लिए, ये कोर्स करूंगा तो ट्रांसलेटर लग जाऊंगा, ये कोर्स करूंगा तो बाहर चला जाऊंगा इमाम बनने के लिए, ये कोर्स करूंगा तो मदरसा चला लूंगा। मैंने वहां बात करी लोगों से, प्रोफेशनल माइंड सेट के साथ वो सारे कोर्स कर रहे हैं। अच्छी बात है, प्रोफेशनल माइंड सेट होना चाहिए। इसीलिए मैंने कहा मुझे मालूम नहीं आपने अंग्रेजी क्या सोचकर सीखी, लेकिन अगर आपने अंग्रेजी ये सोचकर सीखी है कि हम अल्लाह के रसूल ने जो हमसे वादा लिया था कि गैर हाजरीन तक इस पैगाम को पहुंचाना है, तो चूंकि कयामत तब तक नहीं आनी है जब तक जमीन के एक एक हिस्से पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का कलमा नहीं गूंज उठेगा। हमको उस मकसद में लगना है, उस मकसद के लिए अपने आप को उन जबान के लोगों तक पहुंचाना है, तो आपके सीखने का मजा ही अलग हो जाएगा। ये मेरा वादा है, आप याद करिए। मैं अभी फिर एक बात कहता हूं आपसे कि आप यकीन मानिएगा कि मैं इस लायक नहीं हूं, मैं कोई लफाजी नहीं कर रहा हूं, मैं इस लायक नहीं हूं कि मैं वहां बैठूं, कि मैं चीफ गेस्ट बनकर बैठूं, इस लायक बिल्कुल नहीं। लेकिन अल्लाह ताला की वो एक बात फिर आज वो हो गई, वो तो इज्जु मन तशा व तो जिल्लु मन तशा। अल्लाह जिसे चाहता है इज्जत देता है। अल्लाह ने मेरे लिए ये इज्जत लिखी थी, वरना आप सब लोग मुझसे बेहद ज्यादा काबिल हैं। और मैं तो कह रहा था, अपने दिल में सोच रहा था कि अल्लाह ने जिंदगी दी तो किसी दिन वहां भी आकर बैठेंगे आपके साथ और लोगों का प्रोग्राम सुनेंगे और चुपचाप सुनकर जाएंगे। खैर बहरहाल, तो मैं ये कह रहा था कि हम लोगों की सोच जैसी होती है, उस सोच के हिसाब से हम लोगों के लिए अल्लाह ताला फिर राहें खोल देता है। मैं आप सभी को जो फारगीन हैं और जो यहाँ पर सीख रहे हैं, जो असातिज़ा कराम यहाँ मेहनत कर रहे हैं, जो मुंतजिमा कमेटी और जो इस इंतज़ाम को चलाने में
अपनी मदद करते हैं, जो जिस तरीके से भी इस निज़ाम के साथ जुड़ा हुआ है, आप सबको बेहद मुबारकबाद देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग कौम के साथ, मिल्लत के साथ, मुल्क के साथ और अपने दीन के साथ आने वाले दिनों में मजबूती के साथ खड़े होंगे। मेरी इस बात को ज़रूर गौर कीजिएगा कि अगर हमारे होलिये से, हमारे डुलिये से, हमारे बातचीत करने से, हमारे चलने से, हमारे बोलने से गैर लोगों को अगर तकलीफ होती है और दीन में उसका कोई गुंजाइश है, अच्छा मैं तो वैसे ही कंक्लूड कर रहा हूं जनाब इसे, मैंने तो कहा था आप घंटी बजा दीजिएगा। तो अगर इस तरीके की कोई गुंजाइश निकले तो अपने आप के आमाल से, अखलाक से एक संदेश देने की कोशिश करें, एक मैसेज देने की कोशिश करें। मेरे लिए, मेरे अहले खाना के लिए आप सभी से मैं दुआओं का तलबगार हूँ। आप मेरे लिए दुआ करें, हिदायत के लिए दुआ करें, सबके लिए दुआ करा करें। गैरों के लिए खुसूसी, हम गैरों को उमूमन जो है बद्दुआ देने का ही काम करते हैं। उमूमन हम गैरों को बद्दुआ देने का काम करते हैं, जबकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जो सबसे बड़े दुश्मन थे, आप उनमें से एक को मांगते थे कि अल्लाह ताला इन एक को मेरी खिदमत, मेरे साथ दीन की मदद के लिए दे दे। तो हम में से कितने लोग हैं जो मोदी साहब के लिए दुआ करते हो, अमित शाह जी के लिए दुआ करते हो, योगी जी के लिए दुआ करते हो? दुआ कीजिए क्या सबके लिए, क्योंकि दुआएं तकदीर बदलती हैं। मेरी ये गुजारिश है कि सबके लिए, आपको जो लगता हो कि वो गलत है, वो उसको अल्लाह सही रास्ता दिखाए, हिदायत का रास्ता दिखाए, उसके लिए भी बहुत बहुत दुआ करा करें। बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन फिद दारैन। Jazakumullah. Dear listeners, let me share with you a good news that some special guests are given a precious gift from the principal of the institute, Haji Muhammad Iqbal Saab, in form of a file consisting of a few valuable items. Hazrat Maulana Qari Rashid Ahmad Saab Dawat Barakatuhum. आज अपनी बेकरारी को करार आ ही गया, जिसका शिद्दत से रहा है इंतजार आ ही गया। वाइदे बेमिसल की आमद से ए अहल चमन, इस इलाके में भी अब रंगे बहार आ ही गया। The audience, now it's time to avail ourselves of the valuable pieces of advice from the Honorable President of today's program, Sheikhul Hadith Jamia Ashrafia Rande Surat, Hazrat Maulana Qari Rashid Ahmad Saab Ajmeri Dawat Barakatuhum. अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना अस्फ़फ़ा अम्मा बअद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमिन आयातिही खल्क़ुस समावाति वल अर्दि वख्तिलाफु अलसिनतिकुम व अलवानिकुम
इन्न फी ज़ालिका लआयातुल लिल आलिमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमल अअमालु बिन्नियात व इन्नमा लिकुल्लि इम्रिइम मा नवा। सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मीयुल करीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। हज़रात उलमाए किराम, मेहमानान आली मकाम, तलबाए जी एहतराम और बिरादरान इस्लाम, बेफज़लिही ताला आज के इस इजलास में जिन तलबाए अजीज ने और उलमाए किराम ने मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बयान दिया, वो निहायत आलीशान थे और निहायत कामयाब थे। हजरत मौलाना शम्सुल हुदा साहब दामत बरकातहुमुल आलिया हजरत मौलाना सईद अनवर साहब दामत बरकातहुमुल आलिया ने अपने इंप्रेशंस दिए। चूंकि बहुत से असातिज़े किराम जो हैं वो अंग्रेजी नहीं समझते, इसलिए उन्होंने क्या कहा वो आपके सामने रख। इन हजरात ने जो स्पीकर्स थे उनकी स्पीचेस की तारीफ की, सराहा और हौसला अफजाई फरमाई। मौलाना सईद साहब ने तो यूं कहा कि मेरी तो जबान खुलती नहीं है कि ये स्पीकर्स को किन तारीफी जुमलों से नवाजूं। हजरत मौलाना सईद अनवर साहब दामत बरकातहुमुल आलिया ने मुबारकबाद देते हुए ये फरमाया कि जहां स्पीचेस की कंपटीशन हो रही वहीं तहरीर की भी कंपटीशन होनी चाहिए और तहरीर अंग्रेजी की मशक करानी चाहिए और उसके मकाले लिखवाने चाहिए। और इसकी वजह उन्होंने ये बयान फरमाई कि कुछ हजरात की लिखने की सलाहियतें बड़ी जबरदस्त होती हैं, तो वो लिखकर दीन की खिदमत कर सकते हैं। जैसे बाज हजरात की बोलने की सलाहियत निहायत उम्दा है, वो बोलकर खिदमत करेगा। मौलाना शम्सुल हुदा साहब ने भी आपकी तारीफ की और ये तारीफ के तमाम वर्ड जो हैं जा रहे हैं आपके असातिज़े किराम को।
जिन्होंने निहायत जद्दोजहद से आपके अंग्रेजी मकालात और डायलॉग्स तैयार करवाए और आज के इजलास में बेबाक तरीके पर आपको पेश करने की जुर्अत और हिम्मत उन्होंने अता की। हजरत हाफिज आतिफ रशीद साहब ने निहायत उम्दा बयान दिया। अगरचे कचरा डालने वाला वाकया ज़ईफ है, इसकी सनद नहीं है, लेकिन उन्होंने काम की बातों में एक बात तो ये कही कि भाई आप अंग्रेजी में तकरीर करते हुए नीयत क्या रखते हैं। मुख्तलिफ ज़बानें अल्लाह की निशानियों में से निशानियां हैं। मैंने सूरह रूम की एक आयत करीमा आपके सामने पढ़ी जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह की निशानियों में से आसमानों की तख्लीक है, जमीनों का बनना, जबानों का और लैंग्वेजेस का डिफरेंस है और रंगों का फर्क है। जिनको अल्लाह ने इल्म दिया है वो बहुत आसानी के साथ इससे अल्लाह तक पहुंच जाएंगे। कोई भी जबान सीखना ऐब नहीं है। संस्कृत सीखिए, अंग्रेजी सीखिए, मकामी जबानें आप उबूर कीजिए, गुजराती बेहतरीन बोलिए, उर्दू पर महारत हासिल कीजिए। अरबी अंजुमन भी हमारे यहां कायम है और उर्दू अंजुमने भी कायम है, ये भी कीजिए। इसकी दलील के ज़बानें सीखी जा सकती हैं हदीस में। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत ज़ैद इब्ने साबित रदी अल्लाह ताला अन्हु को इब्रानी जबान सीखने के लिए फरमाया है ताकि उनके लिटरेचर से वाकिफ होकर हम जो है दीनी नुक्ते नजर से मुकाबला कर सकें, सही क्या है गलत क्या है। जैसे भी हजरत मौलाना सईद साहब ने फरमाया कि इंटरनेट पर तरह तरह के मज़ामीन लोग अपलोड करते हैं और वो ज्यादातर अंग्रेजी में होते हैं। अगर हमें अंग्रेजी आती ही नहीं तो हम जवाब कैसे देंगे। इसलिए हमें ये बैनुल अक़वामी और इंटरनेशनल लैंग्वेज सीखने की जरूरत है और हमारा नुक्ते नजर ये जबान के सीखने से अल्लाह को राजी करना है। और वो मकसद जो हजरत ने बयान फरमाया, हजरत हाफिज साहब ने, कि सरकार का वो पैगाम जो हम नहीं थे और हम तक पहुंचाया गया, अला फलयुबल्लिग शाहिदुल गायब, ये हदीस के लफ्ज हैं। वो बातें हम तक पहुंची हैं और ये बातें पूरे आलम में पहुंचानी हैं।
तो जाहिरी बात है कि डिफरेंट लैंग्वेजेस के जरिए से हम लोगों तक अप्रोच कर सकते हैं, पहुंच सकते हैं। इसलिए हमें ज़बानें सीखना है, लेकिन जबान अपने साथ अपना कल्चर लेकर आए तो कल्चर हमें नहीं चाहिए। हम प्रोनाउंसिएशन भी अंग्रेजों जैसा करेंगे, अंग्रेजी को जो मतलूब है वो भी करेंगे, स्टाइल भी हमारा वो होगा जैसे कि मौलाना ने फरमाया, एक्सेंट भी हमारा वैसा होगा। लेकिन हमें डॉक्टर्स चाहिए, लॉयर्स चाहिए, इंजीनियर्स चाहिए, लेकिन ये सब बेहतरीन मुसलमान चाहिए। इनके अंदर इस्लाम की खूबू हो, इनके अंदर अखलाक आलिया हो, ये सरकार की सुन्नतों के मतवाले हों, ये सरकार के आशिक हों जैसे आप हजरात हैं। आप उनकी फिजा में जाएं तो उनको बदलें, आप न बदलें। अंग्रेजी कल्चर इत्तेफाक से ऐसा है कि आजादी के 70 साल होने को हैं, लेकिन अंग्रेजी तहजीब अभी हमारे अंदर से गई नहीं। हम ज़हनी तौर पर अंग्रेजों के गुलाम रहे। वो कोट पैंट नहीं गया। क्यों अंग्रेज आपका पैजामा लेकर बर्तानिया नहीं गया? क्यों अंग्रेज आपकी टोपी लेकर नहीं गया? क्यों वो अपनी टाई छोड़कर गया? क्यों वो अपना कोट और पैंट छोड़कर गया? ऐसा तो क्या था, मुसलमानों ने 800 साल स्पेन पर हुकूमत की। अरबी का इतना तासुर और इतना कल्चर का असर उन पर छोड़ा है कि आज 1000 साल होने के बावजूद वहां के कल्चर में अरबियत नजर आती है। उनकी बोलचाल में कुछ अल्फाज अरबी के हैं, उनके नुकूश में वो अरबियत है। तो तहजीब और तमद्दुन इस्लामी रहेगा। जाम हिंदी है तो क्या, मैं तो हिजाजी है मेरी, और साज हिंदी है तो क्या, लय तो हिजाजी है मेरी। हम कहीं भी रहेंगे लेकिन अरबस्तानी रहेंगे, इस्लामिस्तानी रहेंगे। इंग्लिस्तान हमारे दिल और दिमाग के अंदर बस नहीं सकता। नीयतों को दुरुस्त कर लीजिए। अंग्रेजी शुरू करने से पहले, ये पहली हदीस है इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने तालीम हासिल करने वालों के लिए ये पहली हदीस पेश की है, जिसका नाम हदीसुन निय्या है। और हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी जामे में 7 जगह ये हदीस शरीफ को पेश किया है। पहली जगह नामुकम्मल है, बाकी हर जगह मुकम्मल तरीके पर पेश किया है। और ये दीन की असास है और ये दीन की बुनियाद है। 4 लाख हदीस में इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह अलैह ने जिन 4 हदीसों का इंतखाब किया है, उनमें से एक इन्नमल आमालु बिन्नियात, अमल का आगाज नियत से होता है। जब आपने पढ़ना शुरू किया, चाहे मदरसे में तालिब इल्म पढ़ रहा हो या उस्ताद पढ़ा रहा हो, हर एक के लिए यकसा तौर पर सिंसियरिटी ऑफ इंटेंशन इज वेरी वेरी वैल्यूएबल एंड इंपॉर्टेंट।
बस तो अपनी नीयतों को दुरुस्त रखें, दीन की खिदमत हमारी नीयत हो। दुनिया ठोकरों में है, रिस्क का देना अल्लाह के हाथ में है, अता करने वाले वो हैं। और अजीब बात यह है कि कम से कम तनख्वाह में कंटेनमेंट जितना उलमा को अल्लाह ने दिया है, उतना करोड़ रुपए कमाने वाले को कंटेनमेंट नसीब नहीं है। थोड़े से माल में अल्लाह ताला ने इतनी बरकत दी है। अगरचे जैसे हाफिज साहब ने फरमाया कि कमजोरी असल में उम्मत की है, उम्मत गरीब नहीं है, उम्मत मालदार है और उम्मत इदारों को पैसा दे सकती है, तो देना चाहिए। जब आप देंगे तो हम असातिज़ा को देंगे और ज्यादा से ज्यादा देंगे। नौकरी हमारा मकसद नहीं है, डिग्री हमारा मकसद नहीं है, दीन हमारा मकसद है, अल्लाह की रजा हमारा मकसद है। ये बयान तो मैंने दिया हमारे असातिज़ा और तलबा के लिए। अब छोटी सी स्पीच जो है मेरे उन खास तौर से मुकर्रिरीन के वास्ते जिन्होंने आज प्रोग्राम पेश किया। द प्रोग्राम विच वॉज compelled by the students and ulama, they did choose the beautiful topics which were full of education and knowledge, and they presented beautifully. And Maulana says the function was marvelous. So, I can say that all of us are very fortunate that we could attend this kind of beautiful and holy program in which the ulama presented different topics of deen, and they did touch, and they touched the heart. Maulana said the heart touching programs was compiled here. So I congratulate those who took part today in the program, and I congratulate Haji Iqbal Sahab Damat Barakatuhumul Aliyah, who carried the beautiful virsa of his past father Hazrat Maulana Musa Makrod Sahab Rahmatullahi Ta'ala alayh, and his late son Hazrat Maulana Ismail Shaheed Rahmatullahi alayh. The judges, they also taught here and they learned here, and now they are giving their services to the different universities and madrasas. I congratulate this faculty of English here, which is running beautifully, and may Allah give tawfiq all the responsible people and the persons to run it beautifully as per the necessity of the university and for the whole community and for the Muslim, for whole the world. Allah Ta'ala give you more wealth. You did well.
you worked hard, you had a good effort. Allah subhanahu wa ta'ala give you more and more and more success hereafter and in this world. Wherever you go, Allah give you success, and dua of your asatidha will be with you all the time. But it is condition that you have to join with your ulama and asatidha all the time and take their du'as all the time, and these du'as will take you to the high rise positions inshallah ta'ala. I had asked the Maulana that what time I can take, tell me first. Then there was no bell to ring for me. So I first asked and then I sat here. So Maulana give me 15 minutes. Most of the speakers, they were given the times. They took more time than what they was given. So I will like to complete my address in the time. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah. Now we would like to humbly request our president of today's program to end this gathering with his prayer. Allahumma lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhik wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin wa barik wa sallim. Rabbi ighfir warham wa tajawaz amma ta'lam innaka antal a'azzul akram. Allahumma la tu'akhizna bi su'i a'malina wa la tusallit alayna bi dhunubina man la yakhafu kabiruna wa la yarhamna. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa la tusir alayna. Allahumma atina wa la tahrimna. ऐ अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, कोताहियों से दरगुजर फरमा, अपना फजल और करम शामिल हाल फरमा। ऐ अल्लाह इस फैकल्टी को जिस मकसद से चलाया जा रहा है कि तेरी रसा नसीब हो जाए और ये उलमा को ज़बान आ जाए ताकि ये ज़बान के ज़रिए दीन की खिदमत कर सकें और पूरे आलम में दीन का पैगाम पहुँचा सकें। इस बैनुल अक़वामी ज़बान के ज़रिए से दीन का फैज़ मिले, फ़ायदा मिले। ए अल्लाह नीयतों को दुरुस्त फरमाने की तौफ़ीक़ अता फरमा दे, इस शौबे को कामयाब फरमा दे। मदरसे में जितने शौबाजात चल रहे हैं तमाम को कामरान और सरफराज फरमा। उलमा जो मेहनतें कर रहे हैं सिर्फ अंग्रेजी वाले नहीं बल्कि दराजात आलिया, हदीस और तफसीर, फ़िक़ा और उसूल फ़िक़ा और तमाम शौबों में काम करने वाले उलमा के इल्म में बरकतें अता फरमा। तमाम की यकसा अज़मत हमारे दिल में अता फरमा, तमाम की महब्बतें अता फरमा। ए इलाहल आलमीन आज के इजलास को कबूल फरमा। जो अच्छी बातें हुई उन्हें अल्लाह फैज़याब फरमा। जिन लोगों ने ये बातें हमें सुनाई और उस पर अमल करने की हमें तौफ़ीक़ अता फरमा। ए अल्लाह इदारे को कामरान और सरफराज फरमा। हर तरह के शुरूर और फितन से इदारों की हिफाजत फरमा, दीन की हिफाजत फरमा। मसाजिद, मराकिज़, खानकाहें और मकाबिर और मराकिज़ दीनिया की हिफाजत फरमा। उलमाए रब्बानी हक्कानी की हिफाजत फरमा। ऐ इलाहल आलमीन तलबाए किराम की हिफाजत फरमा। जुमला मुसलमाना ने आलम की हिफाजत फरमा। ए अल्लाह हमारे मुल्क की हिफाजत फरमा। ए अल्लाह यहाँ रहने बसने वालों को हिदायत
हिदायत अता फरमा और ए अल्लाह बाशिंदगान को दीन की समझ अता फरमा। मेरे सरकार के अखलाक इनको समझा दे और ए अल्लाह हमें अखलाक की दावत देने वाला बना दे। और ए इलाहुल आलमीन बहुत अरसे से बैठकर हमने क़ाल अल्लाह क़ाल रसूल सुना, ए अल्लाह ये सुनने को महज अपने फजलो करम से कबूल फरमा ले। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून, सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। Jazakumullah. Lastly, we thank you all from the bottom of our hearts to make the program a success by cooperating with us throughout the program. Jazakumullah khaira. मशगूलियत के बावजूद तशरीफ़ लाएँ यहाँ, शुक्रिया आपका, आप फिर आए यहाँ। आज की तकरीब हो गई बहुस्न खूबी इख्तिताम। अस्सलाम 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 अस्सलाम।